So talking about CA of the tongue, I was just telling you that just like the buccal mucosa CA, the first change is usually erythroleukoplakia, and first of all there is asymptomatic surface ulceration and then there is muscle invasion. Spread is through, अब टंग का CA है ना, तो आप नेबरिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, समझिए उसको, ठीक है कि इसका स्प्रेड कैसे होगा. सो इट कैन स्प्रेड टू द एल्वियोलर म्यूकोजा on the lingual side, it can spread to floor of the mouth. These are the nearby areas. Nodes में जा सकता है ये, base of the tongue पे जा सकता है, and peritonsillar regions, ठीक है. So lingual alveolar mucosa, floor of the mouth, nodes, base of tongue, peritonsillar region. These are some of the region to which the tongue CA can spread because of the neighboring structures. Imaging, how will you go for the imaging of the tongue CA? So the first thing is that imaging में tongue के CA में we can go for MRI is the best, but you can also go for high contrast CT scan, ठीक है, जिसमें soft tissue window में अगर आप देखें तो you can also go for that. Besides that, PET scan और SPECT और ये सारी चीजें तो आप हर जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है. So the imaging usually is that MRI और CT scan. Occult नोडल मेट्स जो होते हैं तो वो यूजुअली इसमें ओकल्ट नोडल मेट्स का चांस बहुत हाई है. इट इज वन ऑफ द एरियाज के जहां हम इलेक्टिव नेक डिसेक्शन को करते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर आर स्किप मेटास्टेसिस. आई टोल्ड यू दिस बिफोर दैट द स्किप मेटास्टेसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका मतलब क्या होता है कि 1 और लेवल 1 और 2 डिजीज नहीं होती, लेकिन 2B 3 4 में डिजीज होती है, ठीक है. सो स्किप मेटास्टेसिस इज अ फिनोमिनन which occurs in tongue CA because of large number of lymphatics present, ठीक है. Therefore, there is often a need of level 4 neck dissection as well in tongue CA. अब जो early lesions हैं जो T1 and T2 हैं, ठीक है, इसमें we can go for wedge resection. सबके लिए आवाज ब्रेक हो रही है कि नहीं? मेरा तो नेट कनेक्शन यहाँ पे स्टेबल है. बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? Hira, there must be some problem at your end, ठीक है. All right. So early lesions T1 and T2, we can go for wedge resection with tip preservation. Just remember that tip of the tongue जो होती है, ठीक है, tongue की जो tip होती है, it has got very much जो functional importance है उसकी. Functional importance of tip of the tongue is very much greater, ठीक है. Tip of the tongue functionally बहुत ज़्यादा important है because जो tongue की articulation है, speech है, it is because of the tip, ठीक है. तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप टिप को प्रिजर्व करें. सो द वेज डिसेक्शन विद टिप प्रिजर्वेशन. अनदर इज दैट हेमीग्लोसेक्टमी. Half of the tongue anterior 2/3 from midline to floor of the mouth and posteriorly up to circumvallate papillae. This is the landmark for hemiglosectomy. आप hemiglosectomy हम कहते हैं ना, hemiglosectomy. Just give me 1 second, okay? Let me just check the net connection. We can go for wedge resection with tip preservation. Similarly, hemiglosectomy. Half of the tongue भी आप काट सकते हैं, लेकिन half of the tongue. What are the landmarks for hemiglosectomy? Hemiglosectomy की जो landmarks हैं, it is half of the tongue anterior 2/3 from midline to floor of the mouth and posteriorly up to circumvallate papillae. This is the landmark for hemiglosectomy, ठीक है. Advanced lesions which are level 3 and 4, we can go for hemi or total glossectomy with or without mandible management, because जो level 3 और 4 के जो lesions होते हैं तो वो अक्सर tongue, floor of the mouth, mandible सबको involve किया होता है. So वो एक complicated procedure होता है, ठीक है. तो hemi या total glossectomy with or without mandible management, ठीक है. साथ में mandible की body को भी आपने manage करना है. Then what are the treatment approaches? Because tongue, आपका जो tongue में approaches बहुत important है. आप tongue को surgically कैसे approach करेंगे? So the first approach that we are going to study about is transoral approach. Transoral का मतलब है मुंह के अंदर आप जाके resections कर रहे हैं, ठीक है. So definitely now you can मतलब see के mouth opening, चूंकि mouth opening का भी issue है और बाकी चीजों का भी issue है. So T1 and T2 lesions के लिए इसको हम लोग transoral approach करेंगे. Edentulous जो patient है उनके लिए बहुत अच्छा है, and those patients who have got a good mouth opening, they are the candidates who will benefit from transoral approach, ठीक है. Edentulous patient with good mouth opening and T1 and T2 lesions. Second option जो हमारे पास है वो lip split है, ठीक है. अब lip split आपको पता है कि lip split हम लोग कैसे करते हैं. Basically what we do is कि हम lip को
मिड लाइन में स्प्लिट कर लेते हैं ना, ठीक है, बाद में इसको फिर से हम सूचर कर लेते हैं जब सर्जरी हमारी हो जाती है, एंड दिस इज टू इम्प्रूव द एक्सेस, ठीक है, बिकॉज माउथ ओपनिंग के साथ आप इतनी बड़ी हेमीग्लोसेक्टमी या फुल ग्लोसेक्टमी नहीं कर सकते, सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एक्सेस वी कैन गो फॉर लिप स्प्लिट, ठीक है. लिप स्प्लिट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद मैंडिबुलोटमी. मैंडिबुलोटमी, यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑटमी एंड एक्टमी, ठीक है. मैंडिबुलोटमी इज ओपनिंग इन द मैंडिबल, while mandibulectomy का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है. सो मैंडिबुलोटमी इज एन ओपनिंग इन द मैंडिबल. हम क्या करते हैं, हम इंसिजन देते हैं लिप स्प्लिट का, और हम मैंडिबल को बीच में से स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है. सो जब सेंटर से हम उसको स्प्लिट कर देते हैं तो मैंडिबल दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. तो क्या होता है कि मैंडिबल जब दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है तो आप उसको एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं. इस तरह टंग तक आपकी अप्रोच आसान हो जाती है, ठीक है. अब जो आपका लिप स्प्लिट है तो उसके डिफरेंट इंसिजन्स हैं. स्ट्रेट भी वो हो सकता है, इट कैन बी कॉन्टूर्ड एज वेल, एंड इट कैन बी नॉच्ड. पिक्चर्स आर गिवन इन वर्निंग, यू कैन व्यू देम. स्ट्रेट लिप स्प्लिट इंसिजन, कॉन्टूर्ड लिप स्प्लिट इंसिजन, एंड देन नॉच्ड लिप स्प्लिट इंसिजन. लिप स्प्लिट के अक्सर आपसे लैंडमार्क्स और इसके जो इंसिजन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, दे आस्क देम इन वाइवा, ठीक है. वाइवा में अगर आपका स्क्वेमस सेल का केस है तो उसमें ये चीजें पूछते हैं. देन वी हैव लोकेशन ऑफ ऑस्टियोटमी. जो ऑस्टियोटमी आप मैंडिबल में करेंगे वो कैसे करेंगे, मिड लाइन ऑस्टियोटमी भी हम कर सकते हैं और हम लैटरल ऑस्टियोटमी भी कर सकते हैं, ठीक है. फिर ऑस्टियोटमी के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर भी कर सकते हैं. जब इंसाइजर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उससे फैसिलिटेट होती है ऑस्टियोटमी. आपका जो ऑस्टियोटमी या बोन कट है तो वो फैसिलिटेटेड होता है, ठीक है, इफ यू गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर. बट what you have to do is that you have to avoid the unnecessary extraction of periodontally sound teeth, ठीक है. मतलब फेवर ये लोग ये करते हैं कि सारी सी बात है, ठीक ठाक दांत है, पेरिडोंटली बिल्कुल ठीक है, तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर रिमूवल. सो कुछ जो ऑथर्स हैं तो वो पैरामीडियन ऑस्टियोटमी, मतलब जो लैटरल ऑस्टियोटमी है या पैरामीडियन है तो उसको भी फेवर करते हैं. एंड फिर इसमें स्टेप्ड ऑस्टियोटमी भी है, ठीक है. स्ट्रेट भी है और स्टेप्ड भी है. स्टेप्ड का सिर्फ ये फायदा होता है कि सरफेस एरिया आपके पास ज्यादा होता है, बाद में जब आप इसको प्लेट करेंगे तो उसमें आपके लिए आसानी होगी, ठीक है. सो लिप स्प्लिट अलोन और कंबाइंड विद मैंडिबुलोटमी. Then lip split has got certain incisions जिसमें straight है, contoured है, notched है, and then your mandibulotomy, जो mandibulotomy का जो cut है, that can be either median, paramedian or lateral, ठीक है. Then you can also remove a central incisor or you can go for preservation of the central incisor. Another method that we have is visor drop down or pull through, ठीक है. वाइजर ड्रॉप डाउन और पुल थ्रू का मतलब ये है कि बायलैटरल नेक डाइसेक्शंस पहले हम कर ले. बायलैटरल नेक डाइसेक्शंस के साथ हम यूजुअली इसको करते हैं, ठीक है. एंड वी गो फॉर सेगमेंटल ऑस्टियोटमी ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल टू कट अ सेगमेंट ऑफ बोन containing the attachments of anterior belly of the digastric. You know that mandible के साथ different muscles attached है ना, digastric है, geniohyoid है, genioglossus का part attach हो सकता है. So इन सब attachments को हम detach कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद माइलोहायोइड से भी इसको डिटैच कर लेते हैं. जब सारी चीजें मैंडिबल में से डिटैच हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका, और साथ में नेक डाइसेक्शंस भी हुई है ना, तो टंग आप नेक में से पुल थ्रू कर लेते हैं, ठीक है जी, सही है. सो फ्लोर ऑफ द माउथ, सारी चीजें लिंगुअली भी रिलीज हो गई मैंडिबल में से, तो क्या किया आपने, नेक में से उसको, द फ्लोर ऑफ द माउथ इज फ्री टू पुल थ्रू इनटू द नेक, ठीक है. सो ये हम इसको कहते हैं पुल थ्रू मेथड और वाइजर ड्रॉप डाउन मेथड. देन what are your surgical considerations during tumor resection? The first thing is management of surgical margins. There is increased recurrence if you do not manage the margins correctly, and disease specific mortality margins के ऊपर depend करती है, ठीक है, because हम mortality और morbidity की बात करते हैं, survival की बात करते हैं, तो it greatly depends upon how you manage the margins, ठीक है. Frozen sections are up to 90% effective, ठीक है. पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी पॉजिटिव मार्जिन के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं. एंड इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप मार्जिन कितना लेंगे तो उसके बाद उसका इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज किस तरह से होगा. वी हैव डिस्कस दिस बिफोर कि अगर आप 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हैं तो उसमें से श्रिंकेज की वजह से 5 मिलीमीटर आप वो उसका एरर के लिए आप छोड़ते हैं, ठीक है. देन वी हैव इनकॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस नेक डाइसेक्शन. इसका ये मतलब है कि आप स्पेसिमन हटाते साथ ही इनकंटिन्यूअस नेक डाइसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है. Resection of mandible with tumor because the lymph vessels go from tongue and floor of the mouth through the mandible periosteum to submandibular triangle, ठीक है. पुल थ्रू टेक्निक जो हम वाइजर ड्रॉप डाउन या पुल थ्रू करते हैं तो उसमें हम प्राइमरी रिसेक्शन को नेक डाइसेक्शन के वुंड में से पुल थ्रू कर लेते हैं, ठीक है. And metastasis through lingual lymph nodes as superficial floor of the mouth may not be addressed with discontinuous neck dissection. इसका फायदा क्या होता है कि हम lingual पूरे का पूरा कट कर रहे हैं ना,
जितना भी लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यू मस्कुलेचर है और बोन का पार्ट है वो हम कट कर रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो लिंगुअल लिम्फ नोड्स के थ्रू मेटास्टेसिस के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूअस नेक डायसेक्शन, कि जिसमें आप नेक डायसेक्शन अलग कर रहे हैं और आप टंग को अलग से रिमूव कर रहे हैं, उससे ये इशू आप एड्रेस नहीं कर सकते। तो सो दिस इज द एडवांटेज, ये फायदा है इन कॉन्टिन्यूअस नेक डायसेक्शन का। अब अक्सर टंग के साथ फ्लोर ऑफ द माउथ भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो फ्लोर ऑफ द माउथ में द डीप मार्जिन शुड इंक्लूड सबलिंगुअल ग्लैंड ऑन द माइलोहायोइड मसल। सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जब मैं आपके साथ पैथोलॉजी के सेशंस कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ कंट्रोवर्सी एंड आई एम गिविंग यू दिस टास्क कि आप इस पे देखें whether you would go for removal of submandibular gland or not, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ हम सबलिंगुअल ग्लैंड रिमूव करते हैं लेकिन सबमैंडिबुलर ग्लैंड को हम नहीं रिमूव करते और डग को हम लोग रिपोजिशन कर लेते हैं। सबमैंडिबुलर डग फ्लोर ऑफ द माउथ में आई हुई है ना, तो उसको हम लोग रिपोजिशन कर लेंगे, ठीक है। लिंगुअल नर्व को आपने प्रिजर्व करना है। सो दिस इज द इशू ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग के साथ अगर फ्लोर ऑफ द माउथ भी इन्वॉल्व है, so what are your surgical considerations? That the deep margin should include sublingual gland, submandibular gland is not removed and the duct is repositioned and you have to preserve the lingual nerve. इस तरह से रेडियोथेरेपी जो है वो एक और ऑप्शन है टंग के सीएस के लिए, जिसमें ब्रैकीथेरेपी जो है वो ब्रैकीथेरेपी बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर कुछ एडिशनल चीजें ये हैं कि टोटल ग्लोसेक्टमी जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपने एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको आपने प्रिवेंट करना है। दिस इज अनदर वन ऑफ योर सर्जिकल कंसिडरेशन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके लिए ट्रेकियोस्टमी, दैट यू हैव टू सिक्योर द एयरवे ताकि एस्पिरेशन ना हो, ठीक है। इस तरह से लेरेंजेक्टमी भी अक्सर होती है साथ में, ठीक है। और लेरेंजेक्टमी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक तो हमारे पास ट्रेकियोस्टमी है और दूसरा लेरेंजियल सस्पेंशन है, ठीक है। लेरेंजियल सस्पेंशन एंड ट्रेकियोस्टमी। सो दिस इज अनदर ऑफ योर सर्जिकल कंसिडरेशन, ठीक है। सो क्या क्या कंसिडरेशंस हैं आपकी कंसिडरेशन सर्जिकल मार्जिन्स के ऊपर है, नेक डाइसेक्शन के ऊपर है, बिकॉज स्किप मेटास्टेसिस का और इंक्रीज लिम्फेटिक चैनल्स की वजह से ये जो है ये काफी इसमें नेक के नोड्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फ्लोर ऑफ द माउथ में क्या सर्जिकल कंसिडरेशंस हैं, एंड देन you have the prevention of aspiration is very important. So this was all about the squamous cell carcinoma of tongue and the different approaches that you use to surgically resect tongue. ठीक है? Any questions up till here? Ma'am, why do they do laryngectomy? What is the benefit of it? अगर आपका बेस इन्वॉल्व है, so coming to reconstruction of the tongue. Reconstruction of the tongue में बात ये है कि आपकी सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें स्ट्रक्चर ऑफ द टंग को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द टंग में बात ये है कि आपका जो 2/3 ऑफ द टंग है वो मोबाइल है, ठीक है। जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है वो मोबाइल पार्ट है, ठीक है। और जो बेस है तो वो इमोबाइल है, ठीक है। 2/3 इज मोबाइल एंड द बेस दैट इज इमोबाइल। अच्छा, टंग के जो मस्कुलेचर है तो उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? उसको 9th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस मसल। पैलेटोग्लॉसस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? एनीवन? पैलेटोग्लॉसस, वेगस। ओके गुड, इसको वेगस सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है बात सेंसरी सप्लाई। द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की सेंसरी जो सप्लाई है वो लिंगुअल नर्व है एंड पोस्टीरियर टंग की 9th है, ठीक है। 9th क्रेनियल नर्व है और जो बेस ऑफ द टंग है तो उसकी 10th क्रेनियल नर्व है। आर्टीरियल सप्लाई इज फ्रॉम द लिंगुअल आर्टरी एंड इफ बोथ दो लिंगुअल आर्टरीज होती है ना, अगर दोनों लिंगुअल आर्टरीज इंजर्ड हो जाए सो देयर इज नेक्रोसिस एंड देयरफॉर अगर आपका कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें दोनों आर्टरीज इंजर हो रही हैं, इट इज बेटर टू गो फॉर टोटल ग्लोसेक्टमी बिकॉज द होल ऑफ द टंग विल बी नेक्रोज्ड एनीवे, ठीक है। What are the goals of tongue reconstruction? The goals are that first of all you have to maintain bulk. Tongue जो है वो एक muscular organ है, ठीक है, और इसके बहुत ज्यादा muscles हैं, ठीक है। The next thing is bulk के साथ साथ mobility भी चाहिए, ठीक है। कुदरत ने जो चीज बनाई है, जो नेचर ने जो चीज बनाई है, let me tell you the most difficult reconstruction to do is that of the tongue, ठीक है। टंग की रिकंस्ट्रक्शन सबसे डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसके इतने इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स हैं और इतना इंट्रिकेट मूवमेंट है इसकी कि वो उसको रेप्लिकेट करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। सो वन थिंग इज बल्क, द नेक्स्ट थिंग इज मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी पर्टिकुलरली टिप की जो मोबिलिटी है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंसेशन एंड लाइक आई सेड टिप शुड बी प्रिजर्व
preserve functional tongue and adjacent neurovascular structures without compromising oncologic principle. Therefore, we say that you have to preserve as much of the native tongue as is possible, obviously without breaching the oncologic principles. मतलब आपने definitely oncologic principles को breach नहीं करना, लेकिन you have to take care that आपका जो tongue है तो उसके structures, मतलब tongue का जो native structure है आप उसको preserve करें, ठीक है. डिफेक्ट्स ऑफ द टंग डिफरेंट मतलब जगहों पे, वैसे तो यूजुअली जो टंग के डिफेक्ट्स होते हैं तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं स्मॉल डिफेक्ट्स में, हेमीग्लोसेक्टमी में और सब टोटल या टोटल ग्लोसेक्टमी में, ठीक है. लेकिन ये अगेन एक क्लासिफिकेशन मुझे मिली थी. टाइप 1 डिफेक्ट एक यूनिलैटरल लैटरलाइज्ड डिफेक्ट है और वो सिर्फ एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में होता है. इट डज नॉट इन्वॉल्व द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है. जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है वहां पे है और यूनिलैटरल लैटरलाइज्ड डिफेक्ट है. टाइप 2 डिफेक्ट्स लैटरलाइज्ड एंटीरियर 2/3 डिफेक्ट, not reaching the posterior third and not involving the contralateral tongue. मतलब टंग को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक तो पार्ट तो आपका इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन है ना, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका मिड लाइन में अगर आप डिवाइड करें, ठीक है. सो इट डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रालैटरल टंग, एक साइड पे टंग का है, और इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग नॉट रीचिंग द पोस्टीरियर थर्ड, ठीक है. तीसरा जो डिफेक्ट है तो वो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है विद कॉन्ट्रालैटरल इन्वॉल्वमेंट. मतलब टाइप 3 में फिर आपके कॉन्ट्रालैटरल इन्वॉल्वमेंट भी है साथ में. Type 4 of the defect, type 4 of the defect does not involve the tongue base, and type 5 defect was a glossectomy defect with involvement of floor of the mouth. This I have taken from a book, एक Indian book है जहाँ से मैंने लिया. I don't know the name of this classification, but they've just mentioned उनके अपनी जो findings थी तो उसके according उन्होंने डिफेक्ट्स को मेंशन किया है. यूजुअली जो हम डिवाइड करते हैं डिफेक्ट्स को और उसके बेस पे, जिसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं रिकंस्ट्रक्शन को, वो ये हैं, ठीक है. 1/3 और लेस ऑफ द टंग जब आपकी लॉस्ट हो, मतलब स्मॉलर डिफेक्ट है, ठीक है. देयर इज अ स्मॉलर डिफेक्ट एंड 1/3 और लेस ऑफ द टंग हैज बीन लॉस्ट, ठीक है. उसमें क्या है आपका, यू कैन गो फॉर प्राइमरी क्लोजर टू प्रिजर्व द रेजिडुअल टंग फंक्शन, ठीक है. प्राइमरी क्लोजर इज ऑलवेज प्रेफरेबल. आप प्रिजर्व करें रेजिडुअल टंग फंक्शन को एंड यू गो फॉर प्राइमरी क्लोजर. द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू कट ट्रांसवर्स एंड नॉट वर्टिकल टू इंप्रूव ईज ऑफ रिपेयर, ठीक है. वर्टिकली आप कट ना करें, ट्रांसवर्स कट करें ताकि आपके लिए रिपेयर आसान हो. एंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, यू कैन लीव इट टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन एज वेल. जो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है वो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है टंग के लिए, ठीक है. particularly if the defects extend to floor of the mouth, it prevents the tethering with floor of the mouth. मतलब डिफेक्ट आपका टंग में भी है और फ्लोर ऑफ द माउथ में भी है, तो क्या होगा जब आप इसको सेकेंडरी इंटेंशन के लिए अगर आप छोड़ दें, आप इसको रिपेयर करें, तो ये टंग और फ्लोर ऑफ द माउथ के दरमियान गैप नहीं रहेगा ना, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है, फाइब्रोज्ड हो जाएंगे. सो in order to prevent that tethering और ताकि मूवमेंट कंटिन्यूड रहे, always remember that whenever the tongue CA it extends to floor of the mouth, तो उस वक्त हमें मोबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. उस वक्त हमें एक मोबाइल फ्लैप चाहिए ताकि फ्लोर ऑफ द माउथ और टंग की जो मूवमेंट्स हैं वो आपके पास प्रिजर्व रहे. तो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट आपकी जो टेदरिंग है तो उसको स्टॉप करता है, ठीक है, उसको रोकता है. यूज एक्सेसिव स्किन टू कॉम्पनसेट फॉर श्रिंकेज. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट्स आर श्रिंकेज. स्किन में श्रिंकेज होती है, ठीक है. सो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने स्किन को थोड़ा एक्सेस में लेना है डिफेक्ट से. एंड बोल्स्टर ड्रेसिंग सिक्योर्ड विद सूचर्स, मतलब उसको आपने सपोर्ट देनी है, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज, आज कोई पूछ भी रहा था, फेशियल आर्टरी मायोम्यूकोजल फ्लैप, ठीक है. इसके साथ हम बक्सिनेटर भी ले सकते हैं. द फेशियल आर्टरी मायोम्यूकोजल इज अ वेरी यूजफुल फ्लैप. ये अक्सर आपका जो कम्युनिकेशंस है उसमें भी यूज होता है, ओरोएंट्रल कम्युनिकेशंस में, ठीक है. इसके साथ आप बक्सिनेटर भी ले सकते हैं. एक्सियल पैटर्न फ्लैप है. इट इज बेस्ड ऑन फेशियल आर्टरी एंड इट हैज गॉट अ वेरी रिलायबल सप्लाई, ठीक है. म्यूकोजल है, वेरी इजी टू हार्वेस्ट. बकल आर्टरी बक्सिनेटर को सप्लाई करती है और फेशियल आर्टरी फैम को सप्लाई करती है, ठीक है. बट लिमिटेड आर्क ऑफ रोटेशन एंड इट्स अ पेडिकल फ्लैप. जैसे मैंने आपको टंग के बारे में बताया था, इसको सेकंड सर्जरी की जरूरत होती है. आपने सेकंड सर्जरी में पेडिकल को काटना होता है फिर, ठीक है. ये देखिए, ये फ्लैप आपका डिजाइन होता है इंट्राओरली, अंदर से हम लेते हैं, म्यूकोजा से लेते हैं. ये फैम फ्लैप है, ठीक है. फेशियल आर्टरी है. फेशियल आर्टरी डिवाइड हो रही है सुपीरियर लेबियल आर्टरी में, इंफीरियर लेबियल आर्टरी में, आगे जाके ये लैटरल नेजल और एंगुलर आर्टरीज दे रही है, ठीक है. सो बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन द फेशियल आर्टरी. ये देखिए, यहां से आपने फ्लैप लिया और इसको आपने टंग के अंदर लगा दिया, टंग के ऊपर लगा दिया, ठीक है.
Then we have another flap and that is the submental island artery flap. Submental island artery flap भी बहुत important flap है, ठीक है, because इसमें जो आपका है it is basically a huge, मतलब एक skin होती है पूरी island की, ठीक है, इसको island flap भी इसीलिए कहते हैं कि ये एक island की तरह होता है, ठीक है, जैसे एक island आपको नजर आता है ना गोल सा, तो एक island की तरह ये होता है and it is based upon the submental artery, ठीक है. Reasonable thickness, good pliability, versatile flap, closer to tongue, and the donor side is cosmetically pleasing. Neck के अंदर इसका जो incision होता है वो होता है, ठीक है. And the submental artery consistently arises from the facial artery in a groove on the medial surface of the submandibular gland. What is the location of submental artery? Submental artery facial artery की branch है. It arises from the facial artery in a groove on the medial surface of the submandibular gland. And the submental artery की जो location है तो वो काफी consistent है, मतलब वो उधर ही होता है, ठीक है. It passes anteriorly between the gland and the mylohyoid muscle, giving off multiple branches, ठीक है. Cutaneous perforating arteries pierce the platysma muscle and they form extensive branches in the subdermal plane. Typically between 1 and 4 of these cutaneous branches exist. The skin territory is perfused by these vessels, ranges from a minimum of 4 by 7 centimeter to a maximum of 15 by 7 centimeter. So that's why it's called an island. एक huge paddle of skin है जो कि जिसको different vessels जो हैं वो supply कर रही हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें हेड को आपने एक्सटेंड करना है, पोजीशन पेशेंट की क्या होगी, हेड एक्सटेंडेड होगा क्योंकि सबमेंटल एरिया से आप ले रहे हैं, चिन के नीचे से ले रहे हैं, ठीक है. इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल को आपने पैल्पेट किया, मार्क किया. पिंच टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि हम देखें कि यहाँ पे रिडंडेंट टिश्यू चिन से नीचे जो आपका ये एरिया है डबल चिन जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके नीचे रिडंडेंट टिश्यू कितना है, उसके लिए हम पिंच टेस्ट करते हैं. नेक को हमने इंसाइज किया थ्रू प्लैटिस्मा इन द सबमैंडिबुलर एरिया, ठीक है. The upper skin flap is raised in the subplatysmal plane and retracted. उसके बाद submandibular gland को identify किया आपने और उसको retract किया. Submental artery and vein are found running in a horizontal direction in the tissue plane between the gland and the mylohyoid muscle. So the submental artery is between the gland and the mylohyoid muscle in a groove, ठीक है. कभी कभार these vessels can also be found beneath the interior belly of digastric. In such cases, the muscle belly should be incorporated in the flap as the perforating branches to the fascia and skin pass through the muscle. The incision of the flap is then completed. So basically, अगर आपका submandibular gland के पास है तब तो procedure आगे straight forward है, लेकिन अगर ये digastric muscle की anterior belly के नीचे है तो उस केस में आपने muscle की belly को भी flap में incorporate करना है, because muscle के जो इस digastric से जो वो हैं vessels हैं तो वो pass होंगी skin में. तो अगर आपने इन परफोरेटर्स का ख्याल नहीं किया तो आपके स्किन आइलैंड का कोई फायदा नहीं है, वो नेक्रोज्ड हो जाएगा. सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द मसल बेली एज वेल. फिर आपने इंसेट किया इसको, इट्स अ कंसील्ड इंसिजन, एस्थेटिक्स भी इसके अच्छे हैं और कलर मैच भी है, ठीक है. डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लैप आर लिमिटेड टू द इंसिजनल स्कार. इसके अलावा कोई ऐसी खास मॉर्बिडिटी इस फ्लैप की नहीं है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द सबमेंटल आर्टरी एंड द सबमेंटल वेन, ठीक है. ये यहाँ पे होते हैं आपके माइलोहायोइड मसल एंड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड के दरमियान, और यहाँ से आप आइलैंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये आइलैंड आप इंसेट कर देते हैं. चीक में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, आप इसको टंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो प्रॉक्सिमिटी है स्ट्रक्चर्स की. ये देखिए सबमेंटल आर्टरी एंड सबमेंटल वेन, और ये पूरा एक स्किन आइलैंड हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है. Then coming to hemiglossectomy, ठीक है. हेमीग्लोसेक्टमी में लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हेमीग्लोसेक्टमी के साथ अगर आपका फ्लोर ऑफ द माउथ का भी की डाइसेक्शन हुई है, रिसेक्शन हुई है, तो फ्लोर ऑफ द माउथ के लिए आपको थिन टिश्यू चाहिए एंड टंग के लिए आपको थिक टिश्यू चाहिए. रिमेंबर दिस, ठीक है. फ्री टिश्यू ट्रांसफर इज अ बेटर ऑप्शन, जिसमें रेडियल फोर आर्म फ्री फ्लैप है, लैटरल आर्म फेशियोक्यूटेनियस है और एंटीरोलैटरल थाई, ठीक है. ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है फॉर हेमीग्लोसेक्टमी. अगर आपका सब टोटल या टोटल डिफेक्ट है, ठीक है, सब टोटल का मतलब है कि या तो आधी से ज्यादा टंग गई है, ठीक है, या तो आपकी आधी से ज्यादा टंग गई है, ठीक है, और जो टोटल डिफेक्ट है तो उसमें पूरी की पूरी टंग गई है. सो स्किन ग्राफ्ट एंड लोकल फ्लैप्स, इसमें बेसिकली अगर आप इस किस्म के डिफेक्ट्स में, मतलब देखिए हम लोगों ने जब हम डिफेक्ट स्पेसिफिक गए हैं तो हमने 1/3 और उससे कम के डिफेक्ट्स का पढ़ा, फिर हम लोगों ने हेमीग्लोसेक्टमी का पढ़ा, अब हम सब टोटल डिफेक्ट्स का पढ़ रहे हैं. अगर सब टोटल या टोटल डिफेक्ट्स हैं तो उसमें ये बात याद रखें कि अगर आप स्किन ग्राफ्ट्स या लोकल फ्लैप यूज करेंगे तो वो एक प्लग करेगा सिर्फ होल को, ठीक है, इसको कहते हैं प्लग द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो क्या होता है कि उसका रिजल्ट बहुत पुअर आता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ वॉल्यूम,
इंक्रीज डेड स्पेस, रिडंडेंट स्पेस बहुत ज्यादा हो जाती है, और साथ में पूलिंग ऑफ सलाइवा। सो आपने क्या करना है कि आप एक इस तरह का आपने कोई एडायनेमिक सा फ्लैप नहीं रखना ओरल कैविटी के अंदर। उसका क्या फायदा है, ना उसमें कोई मूवमेंट है ना उसमें कोई फंक्शन है, ठीक है। सो द रिजल्ट विल बी वेरी पुअर इफ यू यूज अ स्किन ग्राफ्ट और ए लोकल फ्लैप इन केसेस ऑफ सब टोटल एंड टोटल डिफेक्ट्स। पेडिकल मायोक्यूटेनियस फ्लैप, न्यू टंग फॉर्मेशन, एक नई टंग आप बना रहे हैं, ठीक है। सो इट शुड हैव अ सफिशिएंट वॉल्यूम टू रीच पैलेट ताकि आर्टिकुलेशन हो सके, obliterate dead space, improved speech and swallowing, but there is unpredictable long term volume restoration। जब हम पैकमेजर पढ़ रहे थे तो मैंने वहां आपको ये बताया था कि टाइम के साथ साथ इसमें श्रिंकेज होती है, ठीक है। जितना भी आपने अच्छा फ्लैप किया हो विद टाइम उसमें श्रिंकेज के चांसेस होते हैं। सो द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, स्कार कॉन्ट्रैक्चर इज अनदर इशू, ठीक है। सो ये आपके पास पेडिकल फ्लैप्स की ये डिसएडवांटेज है, बट फॉर द टाइम बीइंग कुछ कम टाइम के लिए इट कैन प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल रिजल्ट। माइक्रोवास्कुलर फ्लैप्स आर ऑफ डेफिनेटली मच मोर बेटर। रेक्टस एब्डोमिनस में जैसे मैं आपको बात बता रही थी रेक्टस फेशिया की, कि वो हम जब मैंडिबल के साथ स्टिच कर देते हैं तो वो सस्पेंड कर देता है, ठीक है। नियोमाइलोहायोइड स्लिंग, तो उससे ये एस्पिरेशन और इन चीजों के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा वी कैन गो फॉर ELT एंड वी कैन गो फॉर LD, ठीक है, लेरिंजियल सस्पेंशन। इसी रेक्टस फेशिया जब हम स्टिच कर देते हैं तो उसके साथ लेरिंजियल सस्पेंशन भी हम कर सकते हैं। पोस्ट ऑप केयर में क्या है आपका कि मॉनिटरिंग आपने करनी है। टंग, जब भी आप टंग की रिसेक्शन करें या टंग में कोई प्रोसीजर करें तो उसमें स्वेलिंग, ब्लीडिंग, एयरवे, ये 3 चीजों का तो आपने डेफिनेटली ख्याल रखना है। इवन इफ यू आर डूइंग आप स्क्लेरोजेंट इंजेक्शन कर रहे हैं टंग में, ठीक है, लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन है या लिम्फेंजियोमा है, तो स्वेलिंग, ब्लीडिंग एंड एयरवे, इन 3 चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, प्रोफाइलेक्सिस फॉर DVT, फ्लूइड्स, न्यूट्रिशन, फीडिंग, सप्लीमेंट्स, ठीक है, क्लीनिंग, फ्लैप मॉनिटरिंग, स्पीच swallowing थेरेपी एंड डोनर साइड केयर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नियोमाइलोहायोइड स्लिंग नॉट फंक्शन, ठीक है। नियोमाइलोहायोइड स्लिंग का मतलब है, माइलोहायोइड तो आपका मतलब माइलोहायोइड मसल फ्लोर ऑफ द माउथ तो रिसेक्ट हो गया है ना, तो फ्लोर ऑफ द माउथ में क्या चीज पड़ी हुई है, माइलोहायोइड पड़ी हुई है ना। माइलोहायोइड नीचे हायोइड बोन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो हायोइड बोन को ऊपर करके रखती है, ठीक है। इसलिए हम अगर उसको रेक्टस फेशिया को अगर हम लोग स्टिच कर देते हैं माइलो तो वो एक तरह की आपकी माइलोहायोइड का फंक्शन देती है जब आप रेक्टस फेशिया को मैंडिबल के साथ स्टिच कर देते हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, कुछ जनरल चीजें हैं, ठीक है, जिनका आपने ख्याल रखना है ड्यूरिंग टंग रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें आपका आता है ओबीस वर्सेस लीन पेशेंट्स, ठीक है, वेदर ए पेशेंट इज ओबीस और ही और शी इज लीन। ओबीस पेशेंट्स में जब आप एलडी फ्लैप लेते हैं या आप एंटीरोलैटरल थाई लेते हैं तो वो काफी बल्की फ्लैप होता है। उस बल्की फ्लैप को टंग में रिप्लेस करना तो वो टंग के फंक्शन इतना नहीं होता उसमें, ठीक है। सो एक ओबीस पेशेंट के बजाय अगर एक फिर इस तरह से आप लीन पेशेंट में एंटीरोलैटरल थाई को इजीली ले सकते हैं। अदरवाइज ओबीस पेशेंट में आपने उसको क्या करना है, आपने उसकी कॉन्टूरिंग करनी है, ठीक है। टेम्पलेट प्लानिंग, ये लोग ये कहते हैं कि टंग के जो सीएस होते हैं तो वो अक्सर काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो रिसेक्शन के बाद आप एक टेम्पलेट डिजाइन करें और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डोनर टिश्यू लें, ठीक है, फ्लैप टेम्पलेट के अकॉर्डिंग लें। फ्लैप कॉन्टूरिंग जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई रिडंडेंट फ्लैप है तो उसको हमने काटना है, रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जब भी आप फ्लैप को रिसेक्शन आपने डिस्कार्ड करना है कुछ पार्ट फ्लैप का, तो डिस्टल पार्ट को, उस पार्ट को आपने डिस्कार्ड करना है जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, अदरवाइज आपका फ्लैप निक्रोज्ड हो जाएगा। वॉल्यूम एंड बल्क, कितना वॉल्यूम चाहिए कितना बल्क चाहिए, ठीक है, ये एक और कंसिडरेशन है आपकी। इसके अलावा सुपर क्लोजर, क्लोजर आपने बहुत टाइट नहीं करनी, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर अ सपल क्लोजर, मतलब एडिक्वेट क्लोजर आपने करनी है, इट शुड नॉट बी टू टाइट। मल्टी लेयर्ड करनी है क्लोजर, डेड स्पेस ऑब्लिटरेट करना है, पेडिकल परफोरेटर्स को आपने खराब नहीं करना, ठीक है। माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस के लिए हम फेशियल आर्टरी यूज करते हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी यूज करते हैं, मतलब जो फ्लैप हमने डोनर साइड से उठाया है रेसिपिएंट साइड पे वी कैन एनास्टोमोज इट विद फेशियल आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फेशियल वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन फॉर वेन्स, ये माइक्रोवास्कुलर के लिए, ठीक है। मोबाइल म्यूकोजा, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्लोर ऑफ द माउथ में, टिप में मोबाइल म्यूकोजा की ज्यादा जरूरत है। सेंसिट फ्लैप्स एंड देन नेवर फॉरगेट अबाउट द डोनर साइड मैनेजमेंट, इसका भी आपने ख्याल रखना है। So I'm just ending the meeting and then in the next inshallah session we will discuss the question answers. अभी आप दोबारा से join करें, so we'll just discuss the question answers related to tongue, ठीक है।